Okay, everyone, welcome in your GK class. On our previous GK class, we had discussed about the freedom of Pakistan, how the people of Pakistan get freedom. Okay, we had discussed. So, anyone can give me about review? कोई मुझे review बता सकता है कि how did we get Pakistan? Miss, can I tell? Yeah, you may tell. You are very active today, so you may say. Thank you. Miss, You may speak. आपने बोला था कि ब्रिटिश मुस्लिम से उनको टॉर्चर करते थे. ओके, सही है, आपने बिल्कुल सही कहा. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. Yes, Miss. Yeah, you are saying correctly. Speak more. और जब मुस्लिम ट्रेन में बैठे हुए थे, जब भी उन्होंने आके मारा था, तो क्या क्या था? Okay. I can't remember. Okay. Some points you remembered. So there is no harsh and fast rule that you have to remember each and everything. Okay, fine. Anyone else who want to repeat something? What? Okay, Nurul Hadi. Okay, Nurul Hadi, you may speak. Mama. Nurul Hadi, you may speak, beta. Miss, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था ना शायद? Yes. 1947. Okay. Now I am repeating. सबकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. Okay, now tell me, can you hear me properly, Nurul Hadi? सबकी आवाज आ रही है. But Okay, little louder. Can you speak little louder? Thank you so much. Okay, students, now I am repeating the previous class lecture. We only discuss about introduction. Basically, our first GK topic is national heroes and their roles in the independence of Pakistan. Got it? So this is your first topic, which we will cover in upcoming weeks. And in this, basically the main objective of this topic is to know about the some personality and also learn how to write biography of any person. Okay, a special person. So we had discussed about some national heroes of Pakistan, just name. So many of you told me about that teacher Allama Iqbal is also a hero of Pakistan, as well as many of you said Liaquat Ali Khan, and Jafar said teacher Johar brother, and other said Qaide Azam. Okay, or Miss Ikra increased your knowledge that Sir Syed Ahmad Khan is also a national hero. Okay, so after that we had discussed that when the people of subcontinent, especially Muslim, demanded a separate homeland. Why? Just because of torturing, just because of lots of problem, because they were not getting their rights properly. They were not giving any space where they were lived as proper Muslims. Okay? उनके पास ना ही कोई ऐसा राइट था कि वो ऑफिशियल जॉब कर सकें, गवर्नमेंट जॉब कर सकें, ना ही उनके पास कोई स्पेस था जहां वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें. इसीलिए मुसलमानों, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने मिलकर फैसला करा कि वो अपना एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड करेंगे. So Misikra also told you about what is subcontinent. Okay, सबकॉन्टिनेंट क्या है? सबकॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था कि सबकॉन्टिनेंट एक एशिया का प्लेस है जहां पर 2 कंट्रीज थे. सबकॉन्टिनेंट इज अ प्लेस है जो कि 2 कंट्रीज में सेपरेट किया गया था. नंबर 1 इज इंडिया एंड नंबर 2 इज पाकिस्तान. ओके, सो बेसिकली हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि टीचर हु वर रूलिंग एट दैट टाइम, उस वक्त कौन रूलिंग कर रहा था?
So your teacher told you about that British were ruling at that time, and Hindu and Muslims followed them. Okay, हिंदू और मुस्लिम उन सबको फॉलो कर रहे थे, और रूलिंग किसकी थी? ब्रिटिश की थी, रिमेम्बर। फिर योर टीचर टोल्ड यू अबाउट दैट कि मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे थे, मुसलमानों को कोई राइट नहीं दिया जा रहा था कि वो गवर्नमेंट जॉब कर सकें, कोई अच्छी जॉब कर सकें, बिकॉज दे वांटेड टू मेक मुस्लिम एज देयर स्लेव। वो मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते थे, सही है। साथ साथ वो मुसलमानों को धोखा भी देते थे, बिकॉज यंग चिल्ड्रन डिडंट हैव एनी राइट टू गेट एजुकेशन। सबसे बेसिक पॉइंट ये भी था कि मुसलमानों को तालीम नहीं लेने देते थे। लाइक आप देखिए, आज आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट में हैं, तो यू आर फ्री टू गेट एजुकेशन, आप इजीली एजुकेशन ले रहे हो ना सब। लेकिन उस जमाने में छोटे छोटे बच्चों को तालीम तक नहीं देने देते थे। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स वर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स जाहिल, इलिटरेट। उनके पास कोई तालीम नहीं थी कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट को भी सही से पढ़ सके। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मुस्लिम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल हीरोज, बिकॉज आपके सामने कायदे आजम की एग्जाम्पल है। कायदे आजम ने बहुत मेहनत की, कायदे आजम बैरिस्टर थे, एक लॉयर भी थे। अलामा इकबाल की हम बात करेंगे तो अलामा इकबाल ने पीएचडी डन करा हुआ है, लेकिन सब पढ़े लिखे नहीं थे। ये तो कुछ लोग हैं ना जिन्होंने ये सब चीजें की हुई है, बाकी अगर मैं दूसरों की बात करूंगी तो वो लोग इग्नोरेंट थे, इलिटरेट पर्सन थे, उनको रीडिंग और राइटिंग नहीं आती थी। नो नीड टू राइट फहद, जस्ट लिसन टू योर टीचर, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो उनके पास कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जहां से वो एक अच्छी सी जिंदगी को लिव कर सके। उनका कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, उनको किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। दैट इज वाई द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड। ओके, फिर उन सब ने मिलकर यूनाइट होकर ब्रिटिश से डिमांड की कि मुसलमानों को भी एक अलग कंट्री, एक अलग स्टेट दे दिया जाए। इसमें हिंदुओं ने भी साथ दिया, हिंदुओं ने डिसीव भी किया। डिसीव मींस धोखा दिया। ओके, थोड़ी बहुत आप लोग देखें, वोकैबुलरी को भी कैच कीजिए। मिस इकरा आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों बता रही हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो। डिसीव का वर्ड मैंने यूज करा, सो नाउ यू कीप इन माइंड द वर्ड डिसीव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिसीव? ओके, आप लोग के माइंड में होना चाहिए। डिसीव मींस धोखा देना। इंडियंस ने बहुत धोखे दिए। ओके, लेकिन मुसलमान भी यूनाइटेड रहे, और जो हमारे नेशनल हीरोज थे उन्होंने एंथुसियाज्म उनके अंदर क्रिएट किया। एंथुसियाज्म मतलब जज्बा, जोश उनके अंदर डाला। फिर उसके बाद जब सोए हुए यानी स्लीपिंग मुस्लिम जब अवोक हुए, तो उन्होंने मिलकर नेशनल हीरोज के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग की कि वो अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड ले सके। लेकिन ऐसा थोड़ी ना था कि आज नूरुल हादी, मिस इकरा, दानियाल, इनाया खड़े हो गए रोड पर कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? मेजोरिटी को यूनाइट होना होगा, सबको एक साथ मिलना पड़ेगा। तो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुसलमान थे वो सब एक साथ क्या हो गए थे? यूनाइट हो गए थे। फिर जब ये सब यूनाइट हो गए थे, उसके बाद इन लोगों ने ब्रिटिश के सामने चैलेंजेस रखना शुरू कर दिए, ब्रिटिश के सामने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी। व्हाई वी फॉलो दिस, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग इन लोगों ने शुरू कर दी कि हमारे पास ये भी राइट होना चाहिए। अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं बॉर्डर्स में तो ये हमें भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें भी राइट मिलना चाहिए। तो ये सब बातें इन लोगों ने ब्रिटिश के सामने रखनी शुरू कर दी जब हमारे नेशनल हीरोज ने स्लीपिंग मुस्लिम्स को अवोक किया था। फिर एट लास्ट जब उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्सफुली यूनाइटेड के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग की, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस दिए, कुर्बानियां दी,
उसके बाद एट द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने फाइनली अनाउंस किया कि मुसलमानों को उनका सेपरेट होमलैंड दे दिया जाएगा। और वो कौन सी डेट पर दिया गया था? 14 August 1947. If we are talking about the Islamic calendar, so who want to give me answer? Islamic date, Islamic calendar date, can you give me? Okay, let me tell you and increase your knowledge. 27th Ramzan. What? 27th रमजान। इस वाली रात को मुसलमानों को अपना एक सेपरेट होमलैंड मिल गया था। सही है। फिर जब मुसलमान अपने कंट्री की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट था वो डिवाइड हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम रहना चाहते थे वो पाकिस्तान में आ गए, जो इंडिया में रहना चाहते थे वो इंडिया में रह गए, और कुछ मुस्लिम्स इंडिया में रहते, बाकी तो मेजोरिटी इंडिया में कौन थी? हिंदू थे। सही है। और जो पाकिस्तान के हिंदू थे, जो पाकिस्तान के बॉर्डर में हिंदू थे, वो इंडिया माइग्रेट हो गए। Migration is not an easy task. On that time, when they were going to migrate, so they had faced a lot of problems. Look at the picture and identify what kind of problem they had faced. Observe the picture very carefully and don't use pen, student, please. टेम्पो टीचर का ब्रेक हो जाता है जब आप इस तरह की एक्शंस करते हैं। देखिए, फर्स्ट पिक्चर कायदे आजम एड्रेस कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। सही है। एड्रेस मीन्स खिताब करना। एक तो एड्रेस होता है घर वाला और एक एड्रेस होता है खिताब करने वाला। ओके, कायदे आजम एड्रेस कर रहे हैं किसके साथ? नेशन के साथ। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए, स्ट्रगलिंग हो रही है, माइग्रेशन आपको नजर आ रही है कि लोग डिमांड कर रहे हैं। ये देखिए, इनमें से एक हाथ भी ऊपर करे हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यूनाइटेड होकर बात कर रहे हैं। सही है। अब आगे देखिएगा, थर्ड वन पिक्चर। अब व्हाट डिड दिस पिक्चर कन्वे अ मैसेज टू यू? ये पिक्चर आपको क्या मैसेज कन्वे कर रही है? यस नूरुल हादी, टेल मी नूरुल हादी। फर्स्ट पिक्चर में ये तो हिंदू वाले ये लोग मुस्लिम्स को मार रहे हैं, और मैं इस ट्रेन के अंदर पता नहीं कितने सारे लोग मार गए होंगे। आपको इस ट्रेन को देखते ही एक चीज ध्यान में आई होगी, टीचर दिस इज सो कंजस्टेड, बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। ये आपके जहन में आई है ना कि देखिए ऊपर भी पीपल हैं, दरवाजे पर भी पीपल हैं, और वो और भी क्लाइंब अप करना चाह रहे हैं, एंट्रिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन देयर इज नो स्पेस, कोई जगह ही नहीं है ट्रेन में। तो वो किस तरीके से इस ट्रेन के अंदर आ सकते हैं और किस तरीके से इन लोगों ने माइग्रेशन की होगी, ये एक आपकी सोच है। चलें, जैसे तैसे करके भी ये सब ट्रेन में बैठ गए, लेकिन हुआ क्या फिर आगे? जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो हिंदुओं ने, सिख ने इस ट्रेन पर अटैक कर दिया, और ट्रेन पर अटैक करने के बाद क्या हुआ बेटा? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, हर जगह खून खून हो गया, बच्चों को मारा, बड़ों को मारा, फीमेल को मारा, मेल को मारा, ओल्ड पीपल को मारा, सबको किल्ड किया इन सब ने, और बहुत ज्यादा जुल्म किया। जब ये ट्रेन भरकर चली थी और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंची थी, तो ये ट्रेन फुल ऑफ ब्लड थी, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग थी। अगर आपके बुजुर्ग घर में जिंदा हैं, लाइक नाना नानी, परदादा परनानी, इस तरह के अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स घर पर हैं, आप उनसे पूछिएगा, अगर उन्होंने फ्रीडम देखा होगा ना, वो आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगी, और वो देखिएगा मिस इकरा की स्टोरी से रिलेट करेगी। सही है। किस किस के पास नाना नानी है? अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास होंगे, माशाल्लाह से हैं। ओके, किस्सा आप अपनी ग्रैंड मदर से डिस्कस करिएगा, ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं आपके साथ, उनसे आप पूछिएगा कि आप
फ्रीडम के वक्त थी, क्योंकि कुछ मे भी बाद में हुए हो या छोटे हुए हो, लेकिन मेरी एक जानने वाली आंटी है, उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे बताया है जब वो इंडिपेंडेंट जब हुआ था, सेपरेट होमलैंड मिल गया था, वो लोग इस ट्रेन में थे, और इस ट्रेन में वो अपने मनी, अपनी ज्वेलरी को बहुत ही ज्यादा छुपा कर लेकर आ रहे थे, क्योंकि वहां पर थीव भी बहुत थे। मुसलमानों की जितनी भी लैंड्स थी, हिंदुओं ने अपने आप कब्जा कर लिया था, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी। ये हमारी सोच है, और शायद मिस इकरा इतने अच्छे से बता नहीं पा रही जितना सब कुछ इन लोगों ने फेस किया था। इन सब के सेक्रीफाइस की वजह से आज आपको ये सेपरेट होमलैंड मिला हुआ है कि आप एक फ्रीली लाइफ सरवाइव कर रहे हैं ना। आप जब दिल चाहा बाहर चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, कोई आपको नहीं टोक रहा होता। आप चाहते हैं कि आप मस्जिद में इबादत करें तो आप मस्जिद चले जाते हैं। आप यहाँ पर सब आजाद हैं कि कोई अगर क्रिश्चियन है तो वो अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहा है, अगर कोई हिंदू है तो वो अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सेपरेट होमलैंड है जहाँ पर सबको राइट है फ्री टू लिव। सब अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और अपनी अपनी लाइफ को अपने रिलीजन के मुताबिक लिव कर सकते हैं। गॉट इट। अब आप नेक्स्ट पिक्चर को देखिएगा। अब देखिए माइग्रेशन डन हो गई, ट्रेन नजर आ रही है आप सबको। आफ्टर माइग्रेशन देखिए ट्रेन, कायदे आजम भी थे साथ, उन्होंने भी स्पीच करी, और जब कायदे आजम आए तो उनका वार्म वेलकम किया गया। बहुत ज्यादा अच्छे से कायदे आजम का इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया, क्योंकि ये एक वाहिद पर्सन है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग की, बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किया, अपने सन, डॉटर, वाइफ, इन सब का बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया। उन लोगों को टाइम नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी नेशन के लिए डे और नाइट स्ट्रगलिंग की, हार्ड वर्किंग की। एट द एंड इन्होंने इतनी मेहनत की, और जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ये सेलेक्ट हुए, इन्होंने अपनी सैलरी पता है कितनी रखी थी? हाउ मच डिड ही गेट हिज सैलरी? ओनली 1 रुपी। ओनली 1 रुपी कायदे आजम की सैलरी थी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टूडेज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनीवन वांट टू गेट ओनली 1 रुपी एज सैलरी? क्या कोई 1 रुपी सैलरी लेना चाहेगा? नो, नहीं लेना चाहेगा। लेकिन कायदे आजम ने ऐसा ही किया, और उन्होंने 1 रुपी के लिए अपनी जान को भी सेक्रीफाइस किया कि आजादी के बाद, फ्रीडम के बाद कायदे आजम वॉज फीलिंग सिक, बीमार होना शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी डिजीज की ट्रीटमेंट नहीं करवाई। वो लगातार पाकिस्तान को ऊपर की तरफ लेते हुए चले कि मेरा पाकिस्तान, मेरी नेशन को कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। उनको मैं फूड, शेल्टर, वाटर सब प्रोवाइड कर सकूं, उनको मैं एजुकेशन फैसिलिटी दे सकूं, ये सब कायदे आजम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिनों रात की अनथक मेहनत ने कायदे आजम को इस कदर बीमार कर दिया कि कायदे आजम 1948 को, आफ्टर a 1 year of independence, कायदे आजम वॉज डाइड। कायदे आजम का इंतकाल हो गया था 1948। बेटा ये आप सबको डेट्स अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, दिस इज अ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज। सही है। फिर कायदे आजम के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में और भी मसले मसाइल आने लगे। सही है। उन मसले मसाइल को सॉल्व करने के लिए और भी प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए। लियाकत अली खान आए। लियाकत अली खान कौन थे? पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लियाकत अली खान कौन थे बच्चों? रिपीट आफ्टर मी, आई एम रीडिंग योर लिप्स। लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये सब चीजें आप लोगों को अपने अपने माइंड में रखनी होगी। ओके,
क्योंकि ये सब आपके एमसीक्यूज का पार्ट बनेंगे। एंड डोंट वरी, आपको रिटन मटेरियल भी दिया जाएगा कि आप ये कॉपी में राइट करें। सब चीजें आपको मिलेंगी, अभी सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग करें। ओके, अब देखिएगा, ये फ्रंट साइड पिक्चर है उसी ट्रेन की जब स्ट्रगलिंग के बाद मुस्लिम्स माइग्रेट हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ। ओके, सो बेसिकली हमारा ये एक टॉपिक था। अब मैं आप यस जाफर वी विल टॉक, जस्ट मैं रिपीट कर अपनी बात को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आप सबसे बातें करूंगी। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट दूंगी, सही है। उस असाइनमेंट में मैं आपके लिए कुछ चीजें वहां लिखूंगी जो कि आप लोगों ने फाइंड करनी होगी। आप उसे एक कंप्यूटर पेज में रखेंगे, लिखेंगे, और वो कंप्यूटर पेज जब आप अपनी कॉपीज रिसीव कर लेंगे तो हम वहां उसे पेस्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपने कंप्यूटर पेपर में करनी है, और ये आप कर कर अपने पास सेफली रखेंगे। और इस दफा तमाम बच्चों ने प्रॉपर वर्किंग करनी है, क्योंकि अब हम काम करेंगे कॉपीज पर। कॉपीज पर काम करेंगे तो तमाम बच्चे कॉपीज अपनी प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे। ये नहीं होगा कि ये वर्कशीट तो मैंने नहीं की, वो वर्कशीट मैंने नहीं करी, मैं मिस इकरा को सबमिट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सब बच्चों ने सब काम करना है, और पर्सनली मुझे ये पिक्चर यूनिवर्सिटी में भेजते रहेंगे, और साथ साथ मैं वीकली आपकी कॉपीज भी चेक किया करूंगी। ओके कबीर, कबीर डू यू अंडरस्टैंड? ओके गुड बॉय, कबीर तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारी बात समझते हैं मिस इकरा की। और कबीर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है जीरो टर्म में। मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यू। सो नाउ बेटा मैं ये स्लाइडिंग ऑफ कर रही हूँ, अब जिसे जो कहना है वो मुझसे कह सकते हो। Yes, who want to say? Issa, where are you busy today? Yes, नूरुल हाथ पहले जाफर बोलेंगे, आज जाफर ने बिल्कुल नहीं कहा। जी जाफर। टीचर आई एम सेइंग टीचर, हम जब कॉपी लेंगे टीचर स्कूल से तो किस टाइम पे लेना है हमने कॉपी? बेटा आपको स्कूल मैनेजमेंट मैसेज करके बता देगी कि आप अपनी कॉपीज को रिसीव कर लें, तो आप कर लीजिएगा, सही है। नो नो ओके टीचर, जाफर। आई एम आस्किंग टाइम। टाइम टाइम विच टाइम टाइम? आपका होता है 10 to 2, 10 बजे से 10 2 to बजे 2? तक। यस। ओके 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 नूरुल हादी, यस। यू मे वेट। नूरुल हादी,